Good morning, students. Hope you all are doing well with your families. Children, this is the first computer class of this session, and so we will start with our first chapter of the book, that is Computer, a Storage and Memory Device. I hope you all are now very much aware and have enough knowledge of computers. So, at first, we start with the introduction of the chapter. Now, you might have heard the word data many a times when we talk about computer. What does it mean? What the data actually is? Data is the set of characters like alphabets, digits, or special characters that represent facts or figures. Now, what does the statement mean? It means that whatever order we give to computer, either by clicking the mouse to select or open an item on a screen, or by pressing any key like an alphabet or a number or any special character like question mark, full stop, comma, etc. is a data for computer. After entering data in computer, it goes to the CPU for processing. You all know that CPU is the brain of computer. So, when the data entered in computer is processed by CPU, it becomes an information. इसका मतलब है जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो डेटा होता है और डेटा एंटर करने के बाद जब सीपीयू उस डेटा पर काम करता है मतलब उसे प्रोसेस करता है तो हमें आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहते हैं। यू विल बी मोर क्लियर अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन by these examples. When we have to cook some dish, we need ingredients for it. मतलब अगर हमें खाने के लिए कुछ कुक करना है तो हमें उसका सामान चाहिए होता है। These ingredients are called data. And when we mix these ingredients and cook them, we get a prepared dish. This dish is called information. मतलब सारे सामान को मिलाकर जब हम कुक करते हैं तो उसका आउटपुट होता है prepared dish. ये prepared dish या ये आउटपुट information कहलाता है। I will give you one more example. When you give exams, you get marks. When these marks are entered in computer, this is called data. After entering marks, we do calculation on marks and then you get your mark sheet in which grades are printed according to marks. This mark sheet is called information. I hope now you all understood what are data and information. But how CPU works on this data, or we can say how CPU process this data. You all know that computer is a machine. It cannot understand human language. It has its own language. So, when we give input to computer means when we enter data in computer, it converts human language into its own language that is known as machine language. अब कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसी होगी? You already know, as computer is a machine and like other machines, computer can only have
टू स्टेट्स, ऑन और ऑफ। कोई भी मशीन या तो ऑन होती है या ऑफ होती है। कंप्यूटर इस ऑन ऑफ के लिए 2 डिजिट्स या 2 नंबर्स यूज़ करता है, और वो 2 नंबर कौन से होते हैं? 0 और 1। मतलब 1 को वो ऑन मानता है और 0 को ऑफ मानता है। These 2 digits 0 and 1 are called binary digits। अब बाइनरी की क्या स्पेलिंग है? BINARY। इसमें जो लेटर्स है BI, बाय, इस बाय का मतलब होता है 2। मतलब बाइनरी का मतलब, बाय का मतलब है 2, एंड कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू दीज 2 डिजिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स। तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं या उसमें स्टोर करते हैं, वो उसे पहले जब वो सीपीयू के पास जाता है, ये सारा डेटा या इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू पहले उसे 0 और 1 में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। द डेटा इन कंप्यूटर is stored in bits, BITS, बिट्स। जो भी डेटा स्टोर करते हैं ना कंप्यूटर में, वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब होता क्या है, ये बिट्स क्या है? मतलब जैसे आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो? पहले उसका मेजरमेंट करवाते हो, पहले उसे तुलवाते हो या नपवाते हो। लाइक वी बाय मिल्क इन लीटर्स, क्लॉथ in meters or centimeters, vegetables, fruits, sugar, rice, ये सब किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स और ग्राम्स। ऐसे ही just like that computer also measures its data when it stored। ऐसे ही जब हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो कंप्यूटर पहले उसको मेजर करता है, नापता है कि वो कितना है, कितना डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से तो वो मेमोरी देगा ना। तो कंप्यूटर का जो मेजरमेंट है, वो कंप्यूटर किस में मेजर करता है? कंप्यूटर मेजर द डेटा इन बाइट्स, BYTES, बाइट्स। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट होती है, सेव करने की यूनिट होती है, यूनिट मतलब जिसमें वो मेजर करता है, वो बाइट्स होती है। इट मेजर्स 8 bit equals to 1 byte मीन्स जब 8 टाइम्स कोई डेटा एंटर करते हैं, 8 टाइम्स मतलब 8 बार आप जब कोई की या प्रेस करते हो या क्लिक करते हो, तो वो डेटा एंटर करना हुआ। तो जब हम 8 बार डेटा एंटर करते हैं, तो चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो या नंबर्स हो या कुछ भी, तो उस 8 बिट्स को कंप्यूटर 1 बाइट में मेजर करता है। सो यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज बाइट्स एंड 8 बिट्स मेक 1 बाइट। नाउ as we human beings have brain to store everything, so brain is our memory system. Just like that, computer also has a certain amount of memory. This memory determines how much data and instructions can be stored in computer. मतलब हम कंप्यूटर की भी कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर कितना डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है या सेव कर सकता है, ये उसकी मेमोरी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यू कैन सी इन द चार्ट गिवन बिलो दैट अ कंप्यूटर हैज़ 2 types of memory, primary memory and secondary memory. Then the primary memory is further divided into 2 memories, RAM and ROM, and secondary memory
is divided into many memory devices. मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो होती है फिर वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम और रोम. क्लियर? ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो बहुत सारे तरीके के मेमोरी डिवाइसेस में डिवाइडेड होती है. अब ये सब क्या होता है? यू माइट बी वरिंग व्हाट आर दीज, यू आर थिंकिंग ये सब है क्या, इतना सारी टाइप्स की मेमोरी. डोंट वरी, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ईच ऑफ देम इन डिटेल. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी. इंटरनल का मतलब होता है अंदर. अब आपको पता है ना कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? यस, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो ये इंटरनल मेमोरी कहाँ होगी? CPU के अंदर. इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. दिस मेमोरी is placed inside the CPU to store data and instructions while the computer is working. मतलब हम जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर उसे अपनी इंटरनल मेमोरी या जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं उसमें सेव कर लेता है. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हम पेंट कर रहे हैं, पेंट में काम कर रहे हैं, तो उस समय जो भी कुछ हम पेंट में काम कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई फिगर या कलर कर रहे हैं, तो वो सब उतनी देर, जितनी देर आप काम करते हो उतनी देर वो सब इंटरनल मेमोरी में सेव कर लेता है. द डेटा इन दिस मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ और वी कैन से शट डाउन. मतलब ये मेमोरी जो होती है ये डेटा को इरेज या रिमूव कर देती है या हटा देती है जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उतनी देर कंप्यूटर में अपनी ये वाली जो मेमोरी होती है सिर्फ उतनी देर के लिए वो डेटा जो होता है उसको रखती है जितनी देर हम काम करते हैं. जब हमारा काम फिनिश हो जाता है या फिर जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इंटरनल मेमोरी अपना डेटा वापस से खाली कर देती है ताकि उसमें नया डेटा आ सके. Internal memory is of 2 types, RAM that is random access memory and ROM that is read only memory. So now I will discuss both types of internal memory. Now what is RAM or random access memory? It stores data temporarily and works like a blackboard that can be overwritten with new data. मतलब रैम कैसी होती है? एक ब्लैकबोर्ड की जैसी होती है. जैसे हम ब्लैकबोर्ड पर से रब करके उस पर दोबारा लिख सकते हैं, ऐसे ही जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी जैसे मैं स्कूल में आपसे बोलती थी ना, चलो वर्ड में ये टाइप करो फिर उसके बाद पेंट में कुछ ड्रॉ करो, तो ये मेमोरी जब आप वर्ड में काम कर रहे हो तो उस समय सिर्फ वर्ड वाला डेटा स्टोर करता है, और जब आप पेंट में काम कर रहे होते हो तो सिर्फ ये तो क्या करता है, वर्ड वाला डेटा हटा देता है और पेंट वाले डेटा को स्टोर कर लेता है. मतलब काम करने के लिए जब कंप्यूटर पर, देखो इसको ऐसे समझो, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तो उसके लिए आपको ब्रेन चलाना पड़ता है. आप बिना ब्रेन चलाए किसी चीज़ को रीड भी नहीं कर सकते. ऐसे ही जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं उस समय कंप्यूटर को भी कुछ मेमोरी चाहिए होती है जो काम आप कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए रखने के लिए, जब तक कि आप उसे सेव नहीं करते. ठीक है? तो ये रैम जो होती है ये इस तरीके की मेमोरी होती है. जितनी देर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो उतनी देर डेटा रैम में स्टोर रहता है, इसलिए ये मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है. टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो सेव नहीं हुआ है, जो चला जाएगा, वो टेम्परेरी है. ठीक है? सो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ. कभी कभी होता है ना, हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और लाइट चली जाती है तो जो भी कुछ रैम में स्टोर होता है वो सब कुछ अपने आप रिमूव हो जाता है. दिस मेमोरी
looks like shown in the picture and it is placed in CPU. Now we come to second type of internal memory, that is ROM, means read only memory. As its name is, the instructions stored in ROM cannot be changed but can be read. Read का मतलब क्या होता है? पढ़ना. और only का मतलब सिर्फ. मीन्स रोम में जो कुछ स्टोर होता है उसे हम सिर्फ पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो हम टाइप कर सकते हैं, ना उस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट कर सकते हैं. मतलब उस इंफॉर्मेशन में, रोम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. आपने देखा होगा. अब ये कहाँ होती है, कैसे पता ये रोम क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है इसमें? तो ऐसे देखो, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तब क्या होता है, उस पर कुछ स्क्रीन्स आती हैं, है ना. कुछ ब्लैक स्क्रीन, 2-3 स्क्रीन्स आती हैं, फिर चली जाती हैं. उसमें कुछ कुछ टाइप कर, ऑलरेडी हमें वाइट कलर से टाइप करा हुआ दिखता है, होता है ना ऐसा. और फिर वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो स्क्रीन्स होती हैं, उसके बाद में जो स्क्रीन आती है जिसमें स्टार्ट बटन होता है, तब भी हम स्टार्ट करते हैं अपना काम करना, है ना. जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जो उस वाली स्क्रीन से ही स्टार्ट करते हैं हम काम करना, जिसमें हमें स्टार्ट बटन मिल जाए, ताकि हम वर्ड खोलना है या पेंट खोलना है तो हम उस बटन पे क्लिक करते हैं. तो ऑन होने के बाद से लेकर और स्टार्ट बटन वाली विंडो आने तक जो 2-3 ब्लैक कलर की स्क्रीन्स मॉनिटर पे आती है और फिर अपने आप चले जाती है, उसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है वो इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है और वो रोम के अंदर सेव होती है, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी. इसीलिए हम उस इंफॉर्मेशन को देख तो सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड इन इट. आप जब कुछ चेंज नहीं कर सकते तो फिर ये इन्फॉर्मेशन डाली किसने, कहाँ से आई ये सारी इन्फॉर्मेशन? देखो, जब कंप्यूटर बनाया जाता है ना, तभी उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रोम में डाल दी जाती है और इस रोम को सीपीयू में लगा देते हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस मेमोरी होल्ड? अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखती है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है ये? रोम कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़. देखो, कंप्यूटर को काम करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए होते हैं. कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं, कुछ तो सीपीयू के अंदर होते हैं, है ना, कुछ तो पार्ट सीपीयू के अंदर होते हैं. इसके साथ साथ हम कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं, माउस भी यूज़ करते हैं, मॉनिटर पे आउटपुट दिखाता है, हम मॉनिटर भी यूज़ करते हैं. फिर उसके साथ अगर प्रिंटर है या स्पीकर अटैच है तो ये सब भी यूज़ आता है. तो कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ जितने भी तरीके के डिवाइसेस जुड़े होते हैं, उनको मैनेज करने की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कौन सा डिवाइस कैसे काम करेगा, कौन सा डिवाइस का क्या मॉडल है, किस तरीके से उसका वर्किंग है, कैसे फाइल्स ओपन होंगी, जो फाइल स्टोर हैं वो किधर है, कौन सी लोकेशन पे सीपीयू में स्टोर है. तो ये जितना भी मैनेज करने का काम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रोम के अंदर स्टोर कर दी जाती है जब कंप्यूटर बनाते हैं, और रोम को सीपीयू के अंदर प्लेस कर दिया जाता है. द रोम लुक्स लाइक शोन इन द पिक्चर हेयर. जैसी दिख रही है ना, ये छोटी सी ये रोम होती है, इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर करके और फिर उसके बाद कंप्यूटर में लगाई जाती है, ताकि कंप्यूटर को काम करने के लिए जिन जिन डिवाइसेस की ज़रूरत है, या कंप्यूटर से जो जो डिवाइसेस अटैच हैं, चाहे वो सीपीयू के पार्ट्स हो या वो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इनमें से जो भी कुछ है, उसकी सारी फाइल्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैनेज करना, वो सारा काम कंप्यूटर के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. सो with this topic, I am ending today's video here. But before finishing it, I want you to recall some important points we have studied today. So, now we start with the points to remember. Today we have studied that data is the set of characters like alphabets, digits or special characters
like question mark, comma, full stop, bracket that represent facts or figures is known as data. When a data is processed by CPU, जब ये data CPU process कर लेता है, then it is known as information. A computer can only understand machine language, or we can say binary language also. This language consists of only two digits, that are 0 and 1. Computer memory is of two types, internal memory and external memory. Internal memory is also called primary memory or main memory. The data in this memory means the data in internal memory is erased when the computer is turned off. Turned off मतलब शट डाउन. जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो जो भी डेटा इंटरनल मेमोरी में होता है वो इरेज हो जाता है अपने आप. इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम. We have also studied that RAM stores information temporarily and works like a blackboard that can be overwritten with new data. RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसमें जो भी डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है. टेम्परेरी मतलब उसको वो अपने जब हम न्यू डेटा डालते हैं या नया काम करते हैं तो जो पहले वाला मेमोरी में स्टोर है वो अपने आप रिमूव हो जाता है और नया वाला डेटा उसमें उतनी देर के लिए स्टोर हो जाता है जितनी देर हम उसमें काम कर रहे हैं. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ. जब लाइट चली जाती है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है मतलब लाइट चली जाती है या हम सिस्टम को कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिमूव हो जाती है. द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन ओनली बी रीड. लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस या वो डेटा जो रोम के अंदर सेव होता है ऑलरेडी, रीड ओनली मेमोरी में जो सेव होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. और ये कैसे तैयार होती है? जब कंप्यूटर बनता है उसी समय ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर दी जाती है. इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़. अब इसमें रोम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? रोम के अंदर जितने भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ यूज़ कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, सीपीयू के अंदर वाले पार्ट्स, उन सारे पार्ट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है, उन सारे पार्ट्स को मैनेज करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन रोम के अंदर स्टोर रहती है. इसीलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रोम, read only memory. Thank you children. With this, today's Computer Science Chapter 1 Part 1 lesson video is over. Go through the video again so that you can understand the concepts well. You can ask questions and share your feedback on my WhatsApp number. Take care and have a good day.